आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि वजीर आला ने 7,290 करोड़ रुपए के मंसूबे मसारी से नए प्रोग्राम मन ऊरू मन बड़ी यानी हमारा गांव हमारा स्कूल के जरिए तमाम 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी का अहम फैसला किया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म तारक रामाराव, जो वजीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी है, इस खुसूस में ट्वीट करते हुए रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और उनकी टीम से इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज हुए काबीना के इजलास में वजीर आला ने फैसला किया जिसकी के.टी. रामाराव ने सताइश की है। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का दौरे जिले वरंगल मंसूख कर दिया गया है। ताहम रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदार नरसमपेट और परकाल असेंबली हल्कों का उन्होंने दौरा किया ताकि रियासत में हालिया हुई बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान का सामना करने वाले किसानों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल की समाअत की जा सके। रियासती वजीर एरवली दयाकर राव ने वजीर आला के इल्म में फसलों को हुए नुकसान को लाया था, जिसके बाद वजीर आला ने जिले का दौरा करने का फैसला किया था ताकि किसानों को हिम्मत दिलाई जा सके। ताहम बाज वजूहात की बिना पर वजीर आला के दौरे को मनसूख कर दिया गया। इसी दौरान वजीर आला ने हुकूमत की तरफ से किसानों को हुए नुकसान पर उनकी मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई है। गुज़िश्ता रोज काबीना के इजलास के दौरान किसानों को हुए नुकसान के मसले पर बातचीत हुई थी और वजीर आला ने जिले वरंगल के दौरे का फैसला किया था। ఏ మోతాదులో ఉంది, దాన్ని జాతీయ విపత్తుగా పరిగణించాలన్నా లేదా, పరిగణిస్తే దానికి కేంద్రం ఏం సాయం చేస్తుందనేటువంటి దానికి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కండిషన్స్ జాతీయ విపత్తుల చట్ట ప్రకారంగా 190 కండిషన్లు ఉన్నాయి. విధానం అట్లుంది ఈ దేశంలో. తక్షణం అప్పటికప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసి దాని మీద నిర్ణయం తీసుకొని సాయం చేసేటువంటి ఒక వేగవంతమైనటువంటి విధానం కోరబడినందుకే మనకు కొన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయి. అయినా సరే పరిస్థితిని ఒకసారి కళ్ళారా చూసుకొని ఏం చేయగలం, దీని మీద మనకున్న నిబంధనలు ఏంటి, ఉన్న పరిస్థితులలో ఏం చేయగలం, దీని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ఆలోచిస్తారు. ఈ బాధ తాత్కాలికమే. ఈ బాధ నుంచి బయటపడేటువంటి మార్గాలు అన్వేషిద్దాం. రైతాంగానికి ధైర్యం కల్పించడానికి, సాంత్వన కల్పించడానికి, ప్రభుత్వం మీకోసం ఎల్లవేళలా ఆలోచించేటువంటి ప్రభుత్వం ఉంది రాష్ట్రంలో అనేటువంటి ఒక భరోసా కల్పించడానికి ఇవాళ మేము వచ్చినాం. ఈ పరిస్థితి మీద వ్యవసాయ శాఖ, ఉద్యాన శాఖ మొత్తం అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో ఎక్కడ ఏ మోతాదులో ఏం డ్యామేజ్ జరిగింది, ఏం నష్టం సంభవించింది అవన్నీ కూడా వివరాలు నమోదు చేస్తారు. జిల్లా కలెక్టర్ గారు వాటన్నిటిని కూడా వ్యవసాయ శాఖ పంపిస్తారు. రైతులకు ఏదో రూపంలో వాళ్ళ బాధను దూరం చేయాలి, వాళ్ళు బాగుండాలనేటువంటి కోరిక అందరికి ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ఆలోచిస్తారు. మీకు న్యాయం జరగాలనేటువంటి ఇదే ఇక్కడ ఉండేటువంటి శాసనసభ్యులు గాని, జిల్లా మంత్రి గారు గాని వ్యవసాయ శాఖ యొక్క తపనాన్ని మనవి చేస్తూ, మన ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులకు ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే మనసు కరిగిపోతుంది. రైతులకు ఇంతో కొంత చేసింది కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరు చేయని రూపంగా ఆయన చేశాడు. నీళ్లు ఇచ్చాడు, కరెంట్ ఇచ్చాడు, పెట్టుబడి ఇచ్చాడు, రైతు బీమా ఇచ్చాడు. ఆయనకు నిన్న ధర్మారెడ్డి గారు, పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, గండ రమణారెడ్డి గారు, గండ జ్యోతి గారు, పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీ అందరం కలిసి రైతుల బాధ అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించి నిరంజన్ రెడ్డి గారిని, పల్లరాజరెడ్డి గారిని, నన్ను మీరు ఏదన్నా పోయి ఆడ సర్వే చేయండి, రిపోర్ట్ తీసుకురండి, ఆ రైతుల బాధలు కూడా వినండి, ఆ పెట్టుబడి ఎంత పెట్టాడు, ఎంత నష్టం జరిగింది అనేది కూడా వివరాలు తెలుసుకుని రమ్మన్నాడు. చాలా బాధకరమైన విషయం. ఒక్కొక్క రైతు మిర్చి పంట పండిని చూస్తేనైతే ఘోరమైన పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రవీణ్ లాస్ ఉన్నది. ఏడే మూమెంట్ లనే కూరలు దొరకక నష్టపోయిన సంగతి చూస్తే అంత బాధ అనిపిస్తున్నది. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ధైర్యంగా ఉండండి. ఎవరో రాజకీయ పార్టీలు ఎగేస్తారు, అది ఏం చేసేది పోయేది కేంద్ర ప్రభుత్వం. సరే నష్టపరిహారం ఎట్లనో ముఖ్యమంత్రి ఏ మోతాదులో ఉంది, దాన్ని జాతీయ విపత్తుగా పరిగణించాలన్నా. रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने कोविड-19 की सूरत हाल और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र 31 जनवरी तक अपॉइंटमेंट्स की तादाद में कमी का फैसला किया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दशरथ बालैया ने मंगल को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतला किया कि तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्रों, पासपोर्ट सेवा लघु केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 31 जनवरी तक अपॉइंटमेंट्स की तादाद 50% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से जिन अपॉइंटमेंट्स को मुअत्तल किया गया है उनमें से सिर्फ तिब्बी और हकीकी सफरी हंगामी हालात के दरखास्त गुजार ही मुनासिब दस्तावेजात के साथ पासपोर्ट इंक्वायरी सेंटर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद नस प्रशांत थिएटर सिकंदराबाद से रुजू हो सकते हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का पब्लिक इंक्वायरी सेंटर 31
31 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे तक 4 बजे शाम के बजाय सुबह 9:30 बजे तक 12:30 बजे दिन ही काम करेगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने दरखास्त गुजारों से ख्वाहिश की कि वो कारकर्द पासपोर्ट और सफरी दस्तावेज की दस्तयाबी तक एयर टिकट्स ना खरीदें और अपनी सफरी मनसूबाबंदी ना करें। पासपोर्ट की इजराई के इकदाम तफसीली होते हैं और मौजूदा सूरत हाल में जायद वक्त लग सकता है। शहरियार हैदराबाद के लिए खुशखबरी है। इंडियन गैस ने अपने सारिफीन के लिए खुसूसी तत्काल सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। एक ही सिलेंडर रखने वाले सारिफीन को इस सहूलत से इस्तेफादे का मशवरा दिया गया है। कंपनी के जनरल मैनेजर वेटरी सिल्वन कुमार ने गैस बुक करवाने के अंदरून 2 घंटे सारिफीन को सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन इसके लिए 25 रुपए जायद चार्जेस अदा करने होंगे। गैस ऑनलाइन या फोन के जरिए बुक करवाई जा सकती है। बताया गया कि शहर के 62 इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये सहूलत दस्तयाब है। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में आइंदा तालीमी साल से अंग्रेजी मीडियम की तालीम शुरू करने रियासती हुकूमत के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस तरह का फैसला किया। उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके को तालीम से आरास्ता करने के लिए कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत ने हक़ तालीम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट मंजूर किया था। इस एक्ट पर अमल करने से रियासत के तमाम खानगी स्कूलों और तालीमी इदारों में 25% गरीबों को मुफ्त तालीम फराहम की जा सकती है, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल से चंद्रशेखर राव हुकूमत ने इस खुसूस में कोई तवज्जो नहीं दी। अपोजिशन की जानिब से हक़ तालीम के कानून पर अमल आवरी का मुतालबा करने पर केजी ता पीजी मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान असातिज़ा की जायदादों पर एक भी तकर्रुर नहीं हुआ। असातिज़ा के बगैर इंग्लिश मीडियम की तालीम किस तरह दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सिंगल टीचर स्कूल के निज़ाम को मुतारिफ करवाते हुए रियासत के कई स्कूलों को बंद कर दिया, जिससे गरीब तुलबा तालीम से दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात करने के बजाय केसीआर हुकूमत ने सियासी बेरोजगारी को दूर करने के इक़दाम किए। उन्होंने स्कूलों को तातीलात का ऐलान करने पर भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद रियासत के स्कूल मुकम्मल तौर पर महफूज थे और कहीं भी स्कूलों में कोरोना से मौत होने की इतला नहीं मिली। इसके बावजूद स्कूलों को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद कर दिया गया और पब्स को खुला रखने की इजाज़त दी गई, जबकि पब्स की वजह से कई अमवात हो रही हैं। इसके बावजूद इस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। हैदराबाद शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ मुख्तलिफ वदियात में गैर मजाज तामीरात की निज़ामी कार्रवाई आज अंजाम दी गई। इस कार्रवाई के दौरान शंकरपल्ली, बुलंदपेट, दुंडीगल, बोडुप्पल और पोचारा बल्दियात में बल्दिया की निज़ामी कार्रवाई के पहले दिन 10 गैर मजाज इमारतों को मुनहदम कर दिया गया, जबकि आज ओहदेदारों ने मुहिम को जारी रखते हुए मजीद 13 इमारतों को मुनहदम कर दिया। बल्दिया की निज़ामी कार्रवाई के दौरान ज़ेर तामीर मकानात के मालिकान ने टाउन प्लानिंग ओहदेदारों से इस्तिफसार किया कि आया वो तामीरात के इब्तदाई मराहल के दौरान क्यों खामोश रहे। बताया गया कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने 600 गज से ज़्यादा अराजी पर हुई गैर मजाज तामीरात के खिलाफ ये मुहिम शुरू की है। 2 दिन के दौरान टास्क फोर्स की टीमों ने मज़कूरा बल्दियात में 23 गैर मजाज इमारतों को मुनहदम कर दिया, जिनमें शंकर बल्ली बल्दिया की 4 गैर मजाज इमारतें, दुंडीगल की 3, बुलंदपेट की 3 शामिल हैं और पोचारा बल्दिया की 2 गैर मजाज इमारतें भी शामिल हैं। ओहदेदारों ने बताया कि गैर मजाज तामीरात के खिलाफ उनकी ये मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो बल्दिया की इजाज़त के बगैर इमारतें तामीर ना करें।
हुकूमत तेलंगाना ने मरकज पर जोर दिया है कि दूसरे और एहतियाती यानी बूस्टर डोज के दरमियान वक्फे को मौजूदा 9 माह से कम करते हुए 6 माह कर दिया जाए। निगहदाश्त सेहत के वर्कर्स के लिए भी दूसरे डोज और एहतियाती डोज के दरमियान मुद्दत को कम करते हुए सिर्फ 3 माह कर देने की तजवीज़ भी पेश की गई है। वजीर सेहत टी हरीश राव ने मंगल को मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया को इस ताल्लुक से एक मकतूब रवाना किया। हरीश राव ने मरकजी वजीर पर जोर दिया कि वो हुकूमत तेलंगाना की ख्वाहिशात पर गौर करें, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक में बूस्टर डोज की जिन पॉलिसियों पर अमल आवरी की जा रही है उनकी बुनियाद पर ही रियासती हुकूमत ने मरकज से नुमाइंदगी की है। वजीर सेहत ने मनसुख मांडविया पर मजीद जोर दिया कि वो जायद 60 साल की उम्र के तमाम शहरियों जो कि दीगर अमराज की पेचीदगियों से बालातर हैं उनको भी एहतियाती डोज देने के इकदाम करें। फिलवक्त ऐसा नहीं किया जा रहा है। मरकजी वजीर पर जायद 18 साल की उम्र के तमाम शहरियों को भी बूस्टर डोज देने पर गौर करने के लिए जोर दिया गया। हरीश राव ने अपने मकतूब में कहा कि इस तरह हम एक बड़ी आबादी को कोविड-19 के इन्फेक्शन से महफूज रखने में हिस्सा अदा कर सकते हैं। रियासती वजीर ने निशानदेही की कि वैक्सीनेशन से बहसत मजमूई इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में मदद मिल रही है और अगर दूसरे डोज के अलावा एहतियाती डोज के वक्फे में कमी की जाती है तो मजीद सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक जोखिम वाले ग्रुपों को एहतियाती डोज देने का अमल शुरू किया है। तेलंगाना में निगहदाश्त सेहत के वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोई इमराज से गैर मुतासिर जायद 60 साल की उम्र वाले शहरियों को प्रिकॉशन डोज देने का आगाज कर दिया गया है। 17 जनवरी तक रियासत में 1,46,075 अफराद को एहतियाती डोजेस दिए जा चुके हैं। डायरेक्टर महकमे सेहत के मुताबिक इन जबरों में जायद 12,70,000 बेनिफिशरीज को एहतियाती डोजेस देने हैं। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,07,904 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 2,983 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान दो और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 2,706 अफराद सेहतयाब हुए। रियासत में फिलहाल 22,472 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। आज वजीर सेहत हरीश राव ने महबूबनगर में एक 30 बिस्तर के अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। ఎప్పుడు లక్ష్మారెడ్డి గారి పేరు వస్తుంటది మా దగ్గర. వారు నిజంగా తెలంగాణ రాకముందు ఐసీయూలు అనేది ఉండకపోవు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో అసలు ఐసీయూఏ లేదు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో డయాలసిస్ సెంటరే లేదు. హైదరాబాద్ తప్పితే తెలంగాణలో ఎక్కడ ఉండకపోవు. కానీ గౌరవ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో లక్ష్మారెడ్డి గారు స్వయంగా ఒక డాక్టర్ గా ఉండి చాలా మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 40 డయాలసిస్ యూనిట్లు వచ్చినాయంటే, ఐసీయూ కేంద్రాలు తాలూకా స్థాయిలో వచ్చినాయంటే కేసీఆర్ కిట్ లాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం కానీ, అదేవిధంగా కంటి వెలుగులు కార్యక్రమం కానీ, పార్థివ వాహనం కానీ, మహబూబ్ నగర్ మెడికల్ కాలేజీ కానీ, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. చాలా మంచి పని చేసి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వారు చాలా మంచి పని చేసి ఒక శాశ్వతమైన స్థానాన్ని ఈ శాఖలో సంపాదించుకున్నారు. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక విషయం మనం కూడా గమనించాలి. చాలా మంది మంత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ. కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా ఏళ్లు పనిచేసింది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో. బీజేపీ నుంచి కూడా ఎంపీలు ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కూడా మహబూబ్ నగర్ లో ప్రచారానికి వచ్చిపోయింది. కానీ ఏమన్నా జరిగిందా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి. వలసల జిల్లాగా పేరు తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పాలనలో, తెలుగుదేశం పాలనలో. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటే వలసల జిల్లా. కూలీలు ఉంటారు. భారతదేశం అంతా పేరుగాంచింది. వాళ్ళ పుణ్యమాని ఏంటంటే మహబూబ్ నగర్ అంటే పాలమూరు జిల్లా అంటే వలస జీవులు. ఇగో ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఘనత. మనం ఏమి ఇయ్యలే. ఇవాళ కేసీఆర్ గారి హయాంలోనే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి కల్వకుర్తి నీళ్లు జడ్చర్ల నియోజకవర్గం దాకా తెచ్చినాం, కల్వకుర్తి దాకా తీసుకుపోయినాం. నెట్టంపాడి కానీ
आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू मंगल को कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में इत्तला देते हुए कहा कि वो कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। उनमें इस वबा की हल्की अलामत पाई गई हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में अलग थलग कर लिया है और तमाम ज़रूरी एहतियात कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की है कि वो जल्द से जल्द अपना मुआयना करवा लें। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश भी 2 दिन पहले कोविड से मुस्बित पाए गए थे। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनको हल्की अलामत पर वो हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं। महकमे सेहत के डायरेक्टर ने कहा कि हल्की अलामत जाहिर होने पर टेस्ट के जरिए कोविड की तस्दीक हुई और वो एहतियाती इक़दाम के तौर पर हॉस्पिटल में शरीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तरह के खदशात की ज़रूरत है। वो बहुत जल्द सेहतियाब होकर वापस लौटेंगे। हैदराबाद के कई पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता पुलिस ओहदेदार और मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक उनकी तादाद 72 तक बताई जाती है, जिनमें 20 CCS और साइबर क्राइम के ओहदेदार और मुलाजमीन भी शामिल हैं, जबकि नारसिंगी पुलिस स्टेशन का अमला भी इस मोजी मर्ज से मुतासिर हो गया है। हयात नगर पुलिस स्टेशन के 15 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और 14 कांस्टेबल शामिल हैं। ये तमाम घर में आइसोलेट हो गए हैं। नारसिंगी पुलिस स्टेशन में तकरीबन 20 मुलाजिमीन पुलिस कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उनमें से चंद मुलाजिमीन को बुखार है और उनमें दूसरी अलामत भी पाई गई हैं। जो मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं उन्हें होम आइसोलेशन के लिए मुंतकिल कर दिया गया है और उनके अफराद खानदान को भी मशवरा दिया गया है कि वो होम क्वारंटाइन में रहें और अपने टेस्ट भी करवा लें। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के तकरीबन 20 पुलिस मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर होने के बाद माधापुर जोन पुलिस के अहदेदारों ने इब्तदाई राब्ते में आने वाले तमाम अफराद के टेस्ट भी करवाने की हिदायत दी और कहा कि जो अमला उनके मुतासरा मुलाजिमीन पुलिस के राब्ते में आया था उनके भी टेस्ट करवाए जाएँ। इस दौरान एहतियाती इक़दाम के हिस्से के तौर पर पुलिस स्टेशन को सैनिटाइज किया गया और कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमलावरी की जा रही है। शिकायत कुनिंदा और मुलाकातियों के लिए अहाते पुलिस स्टेशन में खुसूसी शामियाना नस्ब किया गया है। इसी तरह चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के 8 कांस्टेबल्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और ये तमाम भी होम आइसोलेशन में है, जिसके बाद उस पुलिस स्टेशन में बाहर के अफराद के लिए दाखिले की इजाज़त रोक दी गई है। किसी मसले पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन आने वाले अफराद की दरखास्तें इंतहाई एहतियात के साथ उसूल की जा रही हैं। समाजी फासला और मास्क को यहाँ लाजमी करार दिया गया है। साइबर क्राइम CCS के जो 20 ओहदेदार और मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं उनके ताल्लुक से ये इत्तला है कि हालिया दिनों में उनमें से एक टीम राजस्थान रवाना हुई थी, जहां एक सब इंस्पेक्टर कोरोना से मुतासिर हुए थे। उस मुतासिर सब इंस्पेक्टर से दीगर 19 ओहदेदार और मुलाजिमीन वायरस से मुतासिर हो गए। दरिया असरा पुराने शहर के चंद पुलिस स्टेशन में भी कोरोना के बाज़ मामला सामने आए, जिनमें मोगलपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल्स और एक होमगार्ड शामिल है, जबकि रैन बाजार पुलिस स्टेशन के 4 कांस्टेबल और मीर चौक पुलिस स्टेशन के 3 सब इंस्पेक्टर्स, एक ASI और एक वुमेन हेड कांस्टेबल के भी इस मोजी मर्ज से मुतासिर होने की इत्तला है। ये तमाम घरों में आइसोलेट हो गए हैं। जिले मुल्क में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मंगल को 4 माओइस्ट हलाक हो गए। ये जिला छत्तीसगढ़ सरहद के करीब वाक़ है। फायरिंग का यह तबादला अली सुबह वेंकटपुरम मंडल के कुरागुट्टा जंगल में पेश आया। माओइस्टों की सरगर्मियों की इंसदाद के लिए तश्कील शुदा स्पेशल फोर्स ग्रे हाउंड्स का एक कांस्टेबल भी इस ऑपरेशन में जख्मी हो गया। इसे हेलीकॉप्टर के जरिए हनमकुंडा मुंतकिल किया गया, जहां उसे एक दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुलाजिमीन पुलिस तलाशी मुहिम में मसरूफ थे। उस वक्त उन्हें ममनुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट से ताल्लुक रखने वाले माओइस्टों का एक ग्रुप नजर आया। पुलिस राय के मुताबिक माओइस्टों ने खुद सुपुर्द होने से इनकार कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। बंदूकों की इस लड़ाई में 4 माओइस्ट हलाक हो गए। शुबा किया जा रहा है कि महलूकीन में CPI माओइस्ट के डिविजनल सतह के कायदीन शामिल हो सकते हैं। इनकाउंटर के मकाम से हथियार भी बरामद किए गए। दोनों रियासतों की पुलिस इन इत्तलात की रोशनी में मुश्तरका तौर पर जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम जारी रखे हुए है कि उस इलाके में सरकर्दा माओइस्ट कायदीन मौजूद हो सकते हैं। इसी दौरान जिस जख्मी कांस्टेबल को हेलीकॉप्टर के जरिए हनमकुंडा मुंतकिल किया गया था, उसे हनमकुंडा के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पर एक एम्बुलेंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बाद अज़ा उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के याचारा मंडल में एक मरतबा फिर तेंदुए की हलचल देखी गई। जिले के
पिल्लीपल्ली देहात के खेत में तेंदुआ देखा गया। उसने बैल पर हमला कर दिया, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने अतराफ व अकनाफ के देहातों की आवाम को चौकस कर दिया और रात में पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी। इस वाक़े के साथ ही मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। लोग घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर तेंदुए के पैरों के निशानात हासिल किए। साथ ही महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो खौफजदा न हो और तनहा रात के वक्त घरों से ना निकले। नई बाइक्स खरीदने के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार करने वाले 3 दोस्त जेल पहुंच गए। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद पी विश्व प्रसाद ने बताया कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन और सेंट्रल जोन ने मुख्तलिफ फनी शवाहिद इकट्ठा करते हुए ऐसे 3 दोस्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली, जिन्होंने शातिर अंदाज में सरखे की वारदात का इर्तिकाब किया था ताकि वो पुलिस के शिकंजे में न आ सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो अदालती तहवील में दे दिए गए। जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उनमें 31 साला केराजू, 29 साला साई कुमार गौड़ और 20 साला दिनेश कुमार शामिल हैं। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 13 जनवरी को गांधीनगर में एसबीआई कॉलोनी में वाक़े शोभा नामी खातून के मकान में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ और फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन किराए पर हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। जब यह खातून अजनबी शख्स को मकान बता रही थी, उसने खातून से चाकू की नोक पर तलाई जेवरात छीन लेने और होंडा शाइन बाइक पर तेजी के साथ रवाना हो गए। पुलिस की तवज्जो हटाने के लिए उस अजनबी शख्स ने मकान के निगरानकार के हाथ पर चाकू से हल्का सा हमला कर दिया। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस के मुताबिक जिस निगरानकार को जख्मी किया गया उसका नाम राजू है और वह अहम मुलजिम साई कुमार के अलावा दिनेश कुमार का साथी ही है। एक मंसूबे के मुताबिक इन तीनों नौजवानों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और साई कुमार ने ही राजू के मशवरे पर शोभा नामी खातून के घर में सरखे की वारदात का मंसूबा तैयार किया था। तलाई जेवरात लूट लेने के बाद वो तेजी के साथ बाइक पर रवाना हो गया। जहां कुछ दूर ही दिनेश कुमार भी मौजूद था, वहां से दोनों फरार हो गए। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ने बताया कि खातून के कब्जे से तकरीबन 9 तोले के तलाई जेवरात लूट लिए गए थे। ज्वाइंट कमिश्नर के मुताबिक मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का मुशाहिदा किया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। खम्मम शहर में एक घनेदार दरख्त के जड़ से उखड़ जाने के बाद 2 कमसिन बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में मजीद 2 मासूम बच्चे जख्मी हो गए। बताया गया कि खम्मम शहर के ब्राह्मण बाजार में चंद बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान मैदान में वाक़े एक घना दरख्त अचानक जड़ से उखड़कर गिर पड़ा। उस दरख्त की जद में 4 बच्चे आ गए, जिनमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हालत में खम्मम के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किए गए। उनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और खम्मम के सरकारी अस्पताल को बाकी जो बच्चे मर चुके हैं उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक 20 दिन की बच्ची पीर के रोज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लावारिस हालत में पाई गई। रेलवे पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि नौमौलूद को उसके वालिदैन ने छोड़ा होगा। ज़राए के मुताबिक बच्ची को शाम 5 बजे प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों ने देखा और उसके रोने की आवाज़ सुनी। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस पर अलर्ट किया गया और तिबी मायने के बाद उस बच्ची को अमीरपेट के शिशु विहार मुंतकिल किया गया। आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े चारी नगर में 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। शमशाबाद म्यूनसिपालिटी हुदूद में झगड़ा हुआ, जिसमें बताया जाता है कि बारकस के रहने वाले कुछ अफराद ने शमशाबाद के रहने वाले अफराद पर मुबैना तौर पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए। उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि शमशाबाद के रहने वाले 2 भाइयों से बारकस के लोगों ने जमीन लीज पर ली थी और उन भाइयों ने जमीन खाली करने को कहा, जिस पर बारकस के लोगों ने 2 महीने का वक्त मांगा। वो मुद्दत भी खत्म हो गई। जब उनसे जमीन वापस करने की मांग की गई तो उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया।
బస్ మీరు పోయిన తర్వాత నీళ్ళు వచ్చిన నా పేరు జయపాల్ రెడ్డి. అన్నట్టు సర్వే నెంబర్ 5 ఎకరాల పొలం, అన్నట్టు 2.5 ఎకరాలు, నాకు 2.5 ఎకరాలు. అన్న లీజుకి ఇచ్చింది 2.5 ఎకరాలు 5 సంవత్సరాల కింద. 5 సంవత్సరాలు టైం అయిపోయింది, కాల్ చేయమంటే వాళ్ళు 2 సంవత్సరాలు అడిగారు. 2 సంవత్సరాలు లేకుండా 6 నెలలు టైం ఇచ్చినాము, సరే అన్నారు. 6 నెలల నుంచి 8 నెలలు అవుతుంది, కాల్ చేయమని పోయినందుకు అటాక్ చేసి కొడవేండి రాడ్లు పట్టుకుని కొడవేండి ఇంపరైస్ వాళ్ళు 4 మెంబర్స్ 5 మెంబర్స్. अब कुछ आलमी खबरें। रूस और नाटो के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मामले में तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव में मौजूद अपनी एम्बेसी लगभग खाली करा ली है। इसके मायने ये हुए कि रूस अपनी एम्बेसी में मौजूद लोगों को जंग की हालत में किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। दूसरी तरफ कनाडा ने रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन में अपने कुछ फौजी भेज दिए हैं। उधर ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूसी टैंकों का सामना करने के लिए एंटी टैंक वेपन्स मिसाइलें दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस बहुत खामोश तरीके से यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है। 5 जनवरी को उसने अपनी एम्बेसी के 18 लोगों को मॉस्को रवाना किया। ये सभी लोग सड़क के रास्ते 15 घंटे का सफर करने के बाद मॉस्को पहुंचे। इसके बाद अगले कुछ दिनों में 30 और लोगों को इसी तरह मॉस्को भेजा गया। यूक्रेन में कीव के अलावा रूस के 2 और कॉन्सुलेट्स भी हैं। इनके मुलाजिमीन से कहा गया कि उन्हें किसी भी वक्त मॉस्को जाने का हुक्म दिया जा सकता है। एक तरफ तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन से यूक्रेन के मसले पर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूसी फौज हमले की तैयारियां कर रही है। एम्बेसी को खाली कराया जाना इसी कड़ी में एक अहम कदम माना जा सकता है। हालांकि रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंगल के रोज कहा कि कीव में उसकी एम्बेसी पहले की तरह ही काम कर रही है। नॉर्थ कोरिया ने मंगल के रोज एक और मिसाइल टेस्ट किया। किम जोंग उन की हुकूमत ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि मंगल के रोज जो टेस्ट फायर किया गया मिसाइल किस तरह का था। इससे पहले उसने 2 हाइपरसोनिक और 1 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया था। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर नई पाबंदियां लगाई थी। इसके बाद तानाशाह किम जोंग के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया को अपनी सिक्योरिटी का पूरा इख्तियार है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट इसलिए भी खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि उसके पास पहले से आइटमी ताकत मौजूद है। वो अब तक 6 आइटमी टेस्ट कर चुका है। पिछले महीने किम ने पार्टी की एक अहम मीटिंग की थी इसमें उसने कहा था कि तमाम मुश्किलों के बावजूद नॉर्थ कोरिया वेपन्स का टेस्ट यानी हथियारों का टेस्ट करता रहेगा। किम ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया को दुश्मनों से निपटने के लिए मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी होगी और ये काम किसी दबाव में बंद नहीं किया जाएगा। अब एक दिलचस्प खबर। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क चीन अपने यहाँ लगातार 5 सालों से घटती बर्थ रेट को लेकर काफी मुतफक्किर है, काफी तशवीश में है। 2021 में चीन की कुल आबादी में 5 लाख से भी कम की बढ़ोतरी हुई। चीन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक 2021 के खत्म तक चीन की आबादी 2020 की 141 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 141 करोड़ 26 लाख हुई है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 2021 में 1 करोड़ 6 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि इस साल 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की मौत हो गई। इस वजह से इस साल मुल्क की आबादी में सिर्फ 4,80,000 का ही इजाफा हुआ है। मुल्क में बर्थ रेट बढ़ाने के लिए चाइनीज हुकूमत ने 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसके बाद पिछले साल 3 बच्चे पैदा करने की एक पॉलिसी बनाई थी। इसके लिए बीजिंग, सिचुआन और दीगर सूबों में माँ बाप को ज्यादा छुट्टी देना और दीगर सहूलत देना भी शुरू किया गया था। लेकिन चीन अब अपनी आबादी की शरह में गिरावट को लेकर काफी मुतफक्किर है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।